Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we shall also be taking calls from you, our friends, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444 or 23717106 or 23717117. And yes, if you are calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 before these numbers as a prefix. Well, I am your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है। हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines. First, government to provide free vaccines to states for all above 18 years and above starting June the 21st. 25% of vaccines can be purchased by private hospitals. At the stock markets, Sensex rises 228 points to end at a record high. Nifty advances 81 points to post a fresh peak. And World Bank approves a $500 million program to help boost country's MSME sector. सरकार 21 जून से 18 वर्ष और उससे बड़े सभी नागरिकों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 25% वैक्सीन निजी अस्पताल खरीद पाएंगे। शेयर बाजारों में सेंसेक्स 228 अंक बढ़कर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 81 अंक बढ़कर ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। और विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को दी स्वीकृति। Prime Minister Narendra Modi today announced that the government of India will provide free vaccines to states for all above 18 years and above starting 21st of June. Addressing the nation this evening, Mr. Modi said no state government of the country will have to spend anything on the vaccine and the government of India will provide free vaccine to all countrymen. He said today, after much deliberation, the government has decided that 25% of the vaccine responsibilities that were looked after by the state governments will now be looked after by the centre. Mr. Modi said that the government will provide free vaccines to all countrymen. Those who want to pay for the same can get vaccinated at private hospitals. He said 25% of the vaccines can be purchased by private hospitals. He added that private hospitals will be able to charge a maximum service charge of 150 rupees for a single dose after the fixed price of the vaccine. Mr. Modi said the task of monitoring it will remain with the state governments. The Prime Minister informed that Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana has been extended till Diwali. He said, in this time of the pandemic, the government is standing with the poor. Mr. Modi said free food grains will be available in fixed quantity every month to more than 80 crore countrymen till November. और अब हमारे साथ हमारी आज की पहली कॉलर जुड़ गई हैं रिंकी बलरामपुर से। रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत के लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। आपके साथ सहयोगी मैम सर कोई भी हो तो पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। पूछिए। आप पूछेंगे और इस पर तो सर मैम कोई हो वो भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी। और जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब आप लोग बताते हैं कि मुंबई का जो शेयर बाजार है या समाचार में बताया जाता है उसकी इतनी गिरावट हुई, इतना उछाल हुआ, तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जब मतलब कुछ ऐसे वहां पे गिरावट होती तब हमारे मुंबई शेयर बाजार में होता है या फिर अपने खुद के ही मार्केटिंग लेवल से होता है, ये कैसे होता है? थोड़ा इस पर अगर राय दीजिए तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। हरवीर जी। देखिए, ये एक तो मैं बताऊं कि जो शेयर सूचकांक है, जो हमारे दो मुख्य सूचकांक हैं BSE और निफ्टी का,
उसमें एक कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जाता है, उनके स्टॉक्स में जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से ओवरऑल जो एक आंकड़ा निकलता है उससे उसकी चाल पता लगती है। दूसरे स्टॉक मार्केट हमारे घरेलू जो आर्थिक डेवलपमेंट है या फैसले हैं या गतिविधियां हैं उनसे भी प्रभावित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या दूसरे देशों में जो घटनाक्रम है या जो बड़े मार्केट्स हैं उनका मूवमेंट क्या है उससे भी होता है, क्योंकि ये मार्केट में सिर्फ हम लोग और हमारे देश के निवेशक ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो FPIs FIs हैं जो दुनिया भर के दूसरी जगह भी उनके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लोग भी जुड़े रहते हैं, तो उनका भी फैसला इसको प्रभावित करता है। दूसरे की हमारी जो इकोनॉमी है अब वो एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो दुनिया में कहीं भी आर्थिक घटनाक्रम जो भी होता है या बदलाव होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हमारे मार्केट्स के ऊपर असर डालते हैं, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। अगले कॉलर है दिल्ली से SL गुप्ता जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम, अभी मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मैं कंप्लेंट करने लगा था, आवाज नहीं आ रही। नहीं, बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज, सवाल पूछें। ये मेरे को कई बार नेट पे नहीं आती, रेडियो पर तो सही आती है, नेट पे नहीं। जी सवाल पूछिए जी। हाँ, मेरे को बीटा स्टॉक के बारे में जानना था, बीटा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये हाई बीटा और लो बीटा स्टॉक हम रिटेलर्स को जो पैसिव इन्वेस्टर्स भी होते हैं कौन सा फायदेमंद होता है? थैंक यू। जी हरवीर जी, बीटा स्टॉक्स के बारे में पूछा इन्होंने, हाई बीटा और लो बीटा में क्या फर्क है? हाँ, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि स्टॉक्स का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, उसके हिसाब से ये वैल्यू उसमें किस तरीके से उसका रेस्पॉन्स होता है स्टॉक का, उसमें ये ओवरऑल तय होता है, और उसी के आधार पर ये स्टॉक्स के जो कैलकुलेशन है वो तय होती है। तो हाई बीटा में ज्यादा उछाल है या गिरावट है, लो बीटा में कम है, कंपैरेटिवली ये पूछ रहे थे कि पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा चॉइस बेटर है, हाई बीटा या लो बीटा? और देखिए जहाँ वोलेटिलिटी कम है पैसिव इन्वेस्टर्स को उसी तरफ ध्यान रखना चाहिए। जी, और अब अनिल है गुरुग्राम से, उनके पास जाने से पहले हम सेंसेक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए अनिल। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की वृद्धि से 228 अंक बढ़कर 52,329 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% की तेजी से 81 अंक बढ़कर 15,752 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.4% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 228 points or 0.4% to close at a record high of 52,329 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 81 points or 0.5% to end at an all-time high of 15,752. In the broader market on the BSE, the mid-cap index advanced 0.8% and the small-cap index climbed 1.4%. Among the sectoral indices, the utilities index surged 3.3%, power index jumped 2.7%, telecom index climbed 1.5%, the energy index advanced 1.4%, the oil and gas index added 1.2%, the industrials index rose 1.1%, the IT, the tech and the FMCG index gained 0.9% each. The basic material index added 0.8%, the capital goods and the auto index moved up 0.7% each. The consumer discretionaries index rose 0.6% and the Bankex and the consumer durables index moved up 0.5% each. Among the declining indices, the realty index fell 0.4%, the finance index shed 0.1% and the metal index ended with marginal losses. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 72 रुपए 80 पैसे दर्ज हुई। अनिल जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मार्केट इंटरेस्ट टीम को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैडम, मेरा एक सवाल है, मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो टाइम टू टाइम मेरे पास में नोटिफिकेशन आता है कि उनकी एनुअल जनरल मीटिंग है या कोई वोटिंग का है, तो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर मुझे किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी हरदीप जी।
तो देखिए, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं और एजीएम में आप भी उसमें भागीदारी है, आप तो आजकल तो वर्चुअल मीटिंग्स होती है, तो आप उसके माध्यम से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरवीर जी, मार्केट्स की अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम हाईस पर पहुंचे हैं सेंसेक्स, निफ्टी। क्या स्ट्रैटेजी ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट करेंगे आगे के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए? देखिए, मार्केट दोनों जो इंडेक्स हैं वो पीक पर है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि मार्केट में जो एक तरीके का उसका जो ट्रेड का बेस है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब एक कॉशियस अप्रोच है। तो इस वक्त जो है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स बहुत हाई लेवल पर है और अभी तो मिड कैप और स्मॉल कैप का भी जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शायद इन्वेस्टर्स वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो हाई वैल्यू स्टॉक्स पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर भी अभी मेरे ख्याल से कॉशियस अप्रोच का एक है। मार्केट बुलिश है अभी भी, और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में भी बना रहे। जैसे आज मार्केट शाम को प्राइम मिनिस्टर की जो आज जो संबोधन था उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ संकेत थे कि शायद वैक्सीनेशन पॉलिसी पे कुछ बात होगी, वो हुआ भी और वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो अब कल फिर मार्केट में उसके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। तो ये इस तरीके से मार्केट में अभी जो घटनाक्रम है उसको सीधे जोड़ करके चल रहा है। प्लस आप देखिए कि यूएस मार्केट में अभी भी जो उनका जो जॉब डाटा आया है और वो इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे इन्वेस्टर को। Right. We are now joined by Gaurav from Ghaziabad. Harveer ji. Yeah, hello Gaurav. Hello. Good evening Market Mantra team. Good evening Harveer ji. जी सवाल पूछिए गौरव जी। सर मेरा सवाल है, ये शुगर की प्राइसेस बहुत ऊपर हो गई हैं और दुनिया भर में शुगर की डिमांड है, वो क्योंकि अल्कोहल में शुगर जा रही है, अल्कोहल में जा रही है और वो फिर बाद में पेट्रोल में जा रही है। हमारे यहाँ भी यही कार्यक्रम अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चलाने वाले हैं, तो हमारे यहाँ भी चीनी की कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो उस पर चीनी की कीमतों पर कितना इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये अल्कोहल बना के इसको पेट्रोल में लाने का। दूसरा मेरा सवाल है सर, इन गाड़ियों में क्या टेस्टिंग हुई थी क्या, जहाँ पे मैं कहीं कैन आई चेक दिस ऑन वेबसाइट समवेयर ऑन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दैट माई कार विल नॉट बी अफेक्टेड, माई कार परफॉर्मेंस विल नॉट बी अफेक्टेड, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट यूजिंग दिस alcohol laced petroleum. I think ethanol blending की बात कर रहे हैं। Ethanol consumption. Ethanol. And the third is, will this third question is, sir, क्या पेट्रोल मिलता रहेगा नॉर्मल वाला? If I can afford, I can pay, then why should I use it? That's third option or not? Thank you. Quite a general question and very specific. ये काफी इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि जो ग्लोबल जो सप्लाई है शुगर की वो कम है। थाईलैंड वगैरह का प्रोडक्शन घटा है और ब्राजील में वहाँ वो लोग शिफ्ट करते हैं कि केन जूस से शुगर बनाना है या एथनॉल बनाना है। अगर वो सिर्फ शुगर बनाएगा तो अकेला ब्राजील दुनिया की पूरी जरूरत को पूरा कर देगा, लेकिन वहाँ पर एथनॉल जो है काफी बनता है। ऑलमोस्ट 65% जो केन जूस है वो सीधे उसको एथनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पर टैक्सी फ्यूल है और अप टू 100% एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स भी वहाँ पर कंपनियां बेचती हैं। हमारे यहाँ हमने प्रोग्राम शुरू किया 5%, 10%। अब सरकार ने घोषणा की है कि जो 20% का जो ब्लेंडिंग है उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, पेट्रोल में आप एथनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं, तो उसको हम लोग उसको थोड़ा एडवांस कर दिया है। अभी भी 10% का स्तर कई राज्यों में क्रॉस हो गया है। असल में देखिए, हम लोग जो शुगर का प्रोडक्शन करते हैं उसके चलते देश में चीनी के दाम गिर जाते हैं और किसानों को भुगतान होने में दिक्कत आती है। अब ऐसे में सरकार ने नीति लेकर के आई, उसमें हुआ कि भाई आप एथनॉल बनाइए और उसके हिसाब से फिर उसमें शुगर कैलकुलेट हो जाती है कि आपने जो मोलेसिस कन्वर्ट किया है, नॉर्मल मोलेसिस होता है, बी हेवी मोलेसिस होता है, तो उसमें और सी हेवी मोलेसिस होता है, उसमें आप देख लेते हैं कि कौन से मोलेसिस को आपको एथनॉल की तरफ ले जाना। अगर सीधा केन जूस से ले जाना तो पूरी शुगर आपकी वहां चली जाती है। और गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम में जो एथनॉल के लिए जो डिस्टिलरीज जो कंपनियों ने लगाई है, शुगर कंपनियों ने, उनको फाइनेंसिस अवेलेबल कराने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है। कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ी है, खासतौर से यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो ये एक पॉजिटिव स्टेप है और एथनॉल एक जो ईंधन है वो पर्यावरण के भी अनुकूल है, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट के लिए उसमें कोई बहुत
और एमिशन नॉर्म्स को कम करता है, लेवल को कम करता है। तो इट इज गुड कि फार्मर को दाम मिल सकता है, आप पर्यावरण का सिलेक्शन कर सकते हैं, प्लस आप पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उनका जो इम्पोर्ट है देश में उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक सब्स्टिट्यूट हम लोग अपने देश में पैदा कर रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि शुगर के प्राइसेस भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे? नहीं, इसीलिए ये एक ऑप्शन दिया गया है। और इस बार करीब जो शुगर प्रोडक्शन है वो करीब मेरे ख्याल से 12 से 15 लाख टन इसलिए कम हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने केन जूस को सीधा कन्वर्ट करके एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस हिस्से के केन का शुगर बनाया नहीं। कई शुगर मिल्स ऐसी हैं जो 100% सीधा केन जूस को कन्वर्ट कर देंगे एथेनॉल में सीजन में, और नॉन सीजन में वो बाकी जो मोलेसिस दूसरी जगह से यूनिट चलेगी उससे एथेनॉल बनाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जी। सरकार ने जो सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके साथ बात करके सारे जो नॉर्म्स है वो तय किए हैं, अप्रूवल्स हैं। तो जो कंपनियों को जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपने इंजन की फिटिंग उस तरीके से कर दिए जिससे कि कंज्यूमर को कोई उसका नुकसान न भुगतना पड़े। जहां तक जिन राज्यों में एथेनॉल का प्रोग्राम पूरी तरीके से लागू है, हालांकि पूरे देश में लागू किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां पर फिर अलग से हो सकता है। जैसे कि अभी भी हाई ग्रेड पेट्रोल मिलता है आपको जो ब्रांडेड है, उसकी कीमत ज्यादा है, तो हो सकता है उसी तरीके से कंपनियां उसका बेचना जारी रखें। हमारे श्रोता कपिल काफी देर से वेट कर रहे हैं हावड़ा से, उन्होंने हमें कॉल किया है। कपिल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। कपिल जी, एक रिक्वेस्ट है, अपने रेडियो की वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। रेडियो में बंद कर दिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया, जी सवाल पूछें जी। मैं हावड़ा से बोल रहा हूँ। मार्केट मंत्रा के यूनिट को मैं सर्वप्रथम नमस्कार कर रहा हूँ। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा प्रश्न है, मैंने म्यूचुअल फंड में कुछ ये किया है, निवेश किया है, तो उसमें जो प्रॉफिट होती है, जैसे मैं 50,000 लगाया, कभी बढ़ करके 65-70,000 हो गए, तो जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका भी फायदा मिलता है क्या? जैसे एफडी में है ना, इंटरेस्ट जो बढ़ता है, इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उसमें, इसमें भी जो प्रॉफिट है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, जो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें आप यूनिट खरीदते हैं और हर यूनिट का नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको, एनएवी होता है, और वो जो यूनिट है उसके जरिए जो आपका पैसा जिस स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जहाँ लगाया गया है वहां पर जो आय बढ़ती है या जो दाम बढ़ते हैं उसके हिसाब से आपका जो यूनिट है उसका वैल्यू बढ़ता रहता है, और वो आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू में चेंज उससे बढ़ता या घटता रहता है। जो आपने इन्वेस्ट किया, अगर मार्केट उसके बाद गया ऊपर, जिन स्टॉक्स में इन्वॉल्व हुआ उनके दाम बढ़े, तो जाहिर सी बात है आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, और वो आपका उस एक तरीके से अगर प्रॉफिट शब्द है या जो आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर रिटर्न है वो उस तरीके से होता है। आइए कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले सतर्कता के बीच चीन के व्यापार संबंधी आंकड़ों के बल पर एशियाई बाजारों में आज अधिकतर तेजी का रुख था। जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की वृद्धि पर दर्ज हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% बढ़कर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.8% की भारी बढ़त दर्ज हुई। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% के नुकसान पर बंद हुआ। आर्थिक खबरों में चीन के दक्षिणी हिस्से में प्रमुख बंदरगाहों में कोविड-19 के मामलों से उत्पन्न बाधाओं के बीच चीन का निर्यात मई में पिछले वर्ष के मुकाबले 27.9% की बढ़त में रहा। उधर कमोडिटीज की कीमतों में भारी बढ़त के बल पर आयात पिछले महीने 51.1% बढ़े। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था। जर्मनी के डैक्स में मामूली वृद्धि थी, लेकिन फ्रांस के कैक में हल्की गिरावट थी। नाउ वी आर जॉइंड बाय हंसमुख फ्रॉम मुंबई। जी सवाल पूछिए। हरदीप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्कार जी। जी आपकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से हमको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जी सर, मेरा प्रश्न ये है जी कि भारत जो है, भारतवर्ष है अभी $600 बिलियन के रिजर्व के ऊपर बैठा हुआ है। जी आगे बोले। इसके जो कुछ फायदे तो पता है, कुछ नुकसान हो सकता है क्या भारत की इकोनॉमी को इससे? थैंक यू।
नहीं, देखिए नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं या जो अर्निंग करते हैं उसी में हमारा फॉरेक्स रिजर्व आता है, या जो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे फॉरेक्स रिजर्व आता है, वो स्टॉक मार्केट में करे या स्टॉक मार्केट के बाहर दूसरी जगह इन्वेस्ट करे। तो इसका हमारे पास होना हमारे लिए फायदेमंद है और उसका जरूरत के हिसाब से हम लोग उपयोग भी करते हैं। सो इट इज पॉजिटिव साइन फॉर एनी इकोनॉमी, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। आइए लेते हैं अगली खबर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। देश में करीब 5,80,00,000 एमएसएमई में से 40% से अधिक उद्यमों को औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात का 40% योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए ये विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पिछले वर्ष जुलाई में $75 करोड़ के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। विश्व बैंक के स्थानीय निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि कोविड महामारी से भारत का एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये कार्यक्रम इस क्षेत्र को फाइनेंस और कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराएगा। इससे भुगतान में देरी की समस्या दूर करने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली को भी प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कहेंगे आप एमएसएमई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने जो ये लोन की बात कही है, सपोर्ट की बात कही, और साथ में आरबीआई की भी जो अभी पॉलिसी आई उसके भी उन्होंने लिक्विडिटी विंडो खोली है एमएसएमई सेक्टर के लिए। आपको लगता है कि इससे ये सेक्टर उभर पाएगा अभी के संकट से? आप देखिए, जो एमएसएमई सेक्टर है वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। दो चीजें, एक्सपोर्ट में उसकी भागीदारी 50% से ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में उतनी ही है, और रोजगार के अवसर प्रदान करने में एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार दाता क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि जो कोविड है 2 साल से, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट एमएसएमई सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि उनका जो वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह डीप पॉकेट्स नहीं होते, आर्थिक गतिविधियां कम हुई हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। बट ये सरकार का और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एमएसएमई को मजबूती दें, क्योंकि उसका बना रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए आप देखें कि पहले पैकेज में भी जब पिछली बार पैकेज दिया गया तो उस कोविड पैकेज में एमएसएमई के साथ बहुत सारी रियायतें दी गई थी। और अभी भी जो आरबीआई का रिव्यू हुआ है, पॉलिसी रिव्यू, उसमें एमएसएमई के लिए एक विंडो दिया गया कि जिससे कि वो लिक्विडिटी का उनको प्रॉब्लम ना आए और जो उनकी तात्कालिक जरूरतें हैं, जो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है वो पूरा हो जाए। प्लस जो आप बता रहे हैं अभी जो न्यूज है जो लोन का, तो ये सारी स्टेप्स उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में उठाए जा रहे हैं। Right, indeed, the importance of MSMEs in our country and our country's growth just cannot be undermined at any point. Well, we are now joined. अभी आपसे बात करा तभी चल रहा था। Hello, we are now joined by Gopal from Mumbai. जी Gopal। हाँ, मार्केट में दिन को नमस्कार जी। जी जी सर, मेरा एक सवाल बहुत जरूरी है, एक बड़ा सवाल थोड़ा बड़ा है, मेरे को इसका जवाब देंगे तो बहुत जरूरी है जी। मैं अभी अगले महीने में 1 महीने के बाद आई एम बिकम सीनियर सिटीजन। मैं डीमेट में शेयर मार्केट में डीमेट में मेरा अकाउंट है और मैं उसमें थोड़ा 2 लाख रुपया घुमाता हूँ। तो पिछले मेरे साथ में ज्वाइंट में मेरे मदर थी जो 6 साल पहले एक्सपायर्ड हो गई है, लेकिन मैं फर्स्ट होल्डर है करके इसके लिए मेरा ट्रेडिंग अभी तक चल रहा है। तो मैंने इसमें अभी इसमें जो मेरा मदर जो डेथ हो गई है वो डिलीट नहीं हो रहा है नाम, और ना ही ये लोग मेरा नाम रजिस्टर कर रहे हैं, नॉमिनी रजिस्टर कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं यू कैन ओपन न्यू डीमेट अकाउंट एंड देन वी विल ऐड द नॉमिनी। उसके बाद आपका ये प्रोसीजर आगे जो अभी का जो रनिंग डीमेट अकाउंट है उसमें से शेयर आपके ट्रांसफर होंगे वो नए डीमेट अकाउंट। तो इसमें आपका ज्वाइंट अभी जो जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट था आपका और आपकी मदर का नाम? ज्वाइंट में मेरी मदर थी, तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई ना, तो मेरे ऑनलाइन सब ट्रेडिंग हो रही है ना, तो सर मेरा वो ट्रेडिंग अभी भी चालू है क्योंकि मैं फर्स्ट अकाउंट होल्डर है ना। जी जी ओके। तो उन्होंने बोला कि अभी आप ट्रेडिंग ये हॉल्ट रखो और आप नया डीमेट अकाउंट मेरा ओपन कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि यू कैन मेक एफिडेविट that whatever your transaction when my mother death, after whatever transaction, that I am fully responsible for that because I am alive. There are no any doubt. तो ये सही है सर, थोड़ा बताएंगे?
और मेरा नॉमिनी में मैंने ऐड कर दिया। देखिए कि जॉइंट अकाउंट है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कि वो एक तो ये देखिएगा उसमें क्या उन्होंने आपको नॉमिनी बनाया था क्या, ये देखना आपके लिए जरूरी है। और क्योंकि फिर तो ऑटोमेटिकली वो उसमें जैसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट और बाकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे उसमें ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये तो उसके बावजूद अगर नॉमिनी नहीं दिखा तो भी ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको एफिडेविट देना और जरूरत हो तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहां से आपको जाकर के इसका डायरेक्शन वहां से दिया जा सकता है इनको कि आप नॉमिनी है और ये आपका हक बनता है। बिकॉज जब ऑलरेडी आप उसका एक हिस्सेदार आते हैं उस अकाउंट में तो उसको बंद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। बट देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर यू कैन हैव ए सेपरेट वन मोर अकाउंट और नो। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि अलग अलग एक ही व्यक्ति 2 अकाउंट रखे, तो उसका क्या मतलब है जी। बिकॉज ये तो डीमेट का मतलब है कि सारे आपके स्टॉक, सारे आपके बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट सब एक जगह है, तो आप ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं एक ही व्यक्ति उसी से। जी, अगले कॉलर है भुज से देवांग। देवांग जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ मैम, मेरा ये एक सवाल है कि अभी जो मार्केट एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो फिर फिलहाल अभी के ओर से कि मार्केट की गिरावट हो सकती है क्या, और गिरावट हो सकती है तो कितने रुपए से गिरावट हो सकती है, ये आप कुछ बता सकते हैं? हरवीर जी, जो एकदम से मार्केट बढ़ा है उससे वो थोड़े परेशान नहीं, देखिए मार्केट एकदम से तो नहीं बढ़ा, पिछले कुछ महीनों से लगातार थोड़े बीच में करेक्शन आए। अदरवाइज अगर आप मार्केट फॉल देखेंगे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसलिए एक सडन स्पाइक नहीं आया कि आप एक हफ्ते में 3,000 4,000 पॉइंट बढ़ गया और फिर उसके बाद उसमें वोलेटिलिटी आए और उस तरीके से गिर जाए। तो अभी तो ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं दिख रही है कि, और बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि इस तरीके से प्रेडिक्ट करना कि एक मार्केट कितना गिर जाएगा, इस सवाल का जवाब तो शायद हम लोग नहीं देंगे और कोई भी मार्केट एक्सपर्ट या जो लोग काम। लेकिन फिलहाल जो तेजी है वो आधारभूत दिखाई देती है। तेजी इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है और ये मानिए कि बड़े पैमाने पर इवन इन दिस लॉकडाउन एंड कोविड बहुत सारे यंगस्टर्स के डीमैट अकाउंट खोले, तो मार्केट में लिक्विडिटी काफी है। जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद हरवीर जी शामिल होने के लिए कार्यक्रम में। धन्यवाद। Now look at the oil. Well, Brent crude oil eased after hitting a 2-year high above 72 a barrel today, pressured by the prospect of higher Iranian exports, though recovering demand and OPEC plus supply curbs provided underlying support. Demand is rising in the United States and Europe as COVID-19 restrictions are loosened, and in another hopeful step for fuel use, India is easing its lockdown. Brent crude fell 62 cents to $71.27 a barrel. उधर कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोना 152 रुपए सस्ता होकर 48,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 540 रुपए सस्ती होकर 69,925 रुपए प्रति किलो हो गई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। Yes, and before we close, here's a reminder of the headlines, friends. Government to provide free vaccines to states for all above 18 years and above starting June the 21st. 25% of vaccines can be purchased by private hospitals. At the stock market, Sensex rises to 28 points to end at a record high. Nifty advances 81 points to post a fresh peak. And World Bank approves a $500 million program to help boost country's MSME sector. On that note, it's time for us to bid adieu, friends. This is myself, Lalima Aneja Dang, with my co-anchor Sonu Sood saying namaskar. Namaskar.